for today. Our topic of discussion is the chapter 2, which is the biological classification. As you know, we have completed our first chapter, that was the living world, and now we are heading towards the next chapter, that is the biological classification. So I think you must be knowing the terms like taxonomy, classification, right? Since in taxonomy we studied about 4 groups of science branches. What? Characterization, identification, nomenclature and classification. So these 4 were the basis of taxonomy, right? And you have studied about each and every particular terms in details in the previous chapter. So if you haven't watched that video, I'll provide the link. Please go and check it out. So the part of classification or the process of classification is like we are going to be studying further in detailed version, right? So classification is what, why it is necessary, that you know. क्यों जरूरी है? Because of having a certain kind of systematic arrangement, है ना. तो हर चीज़ हम कभी भी randomness नहीं प्रमोट करते हैं, तो हमेशा हमें हर चीज़ systematic चाहिए. So based on certain observable, chemical, physiological and n number of what do you say, the properties, when we compare them on the basis of some properties, we classify or we keep each and every organism into a separate group. That is ultimately classification. Like we have classified each and every organism under a specific category. जो उस particular category में organisms हैं, वो कुछ ना कुछ एक set of characteristics follow कर रहे होंगे standard, और इसीलिए वो एक particular उस group में है. तो अब जो organisms वो particular set of characteristics show करेंगे, वो organisms हम उस particular class या category के अंदर में रखेंगे. So that is the briefly the classification, है ना. तो यहाँ पे अब आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, जैसे कि हमने बोला कि सबसे पहले हम किंगडम क्लासिफिकेशंस करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले जो आया वो क्या आया, सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? इसमें ये सबसे पहले तो दिया किसने, ये दिया बाय कैरोलस लिनियस. पहले भी आप पढ़ चुके हो इन साइंटिस्ट का नाम, है ना. कहाँ पर? He also gave the binomial nomenclature, and here he gave 2 kingdom classification. So I guess 2 must be his favorite number, digit, right? So everything, like 2 things we have studied here: the binomial nomenclature and the 2 kingdom classification is given by Carolus Linnaeus, right? So the Carolus Linnaeus said the whole organisms or the living organisms can be divided into 2 kingdoms broadly. First one was plants and second one was animals. One was plant kingdom and second was animal kingdom. And according to him, plants consisted of algae, blue-green algae, right? Fungi, plants, protists, right? And in animals there were protozoa and there were chordates and non-chordates. ठीक है. तो लीनियस ने बोला कि जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ 2 किंगडम्स हैं. क्या क्या? एक प्लांट किंगडम होगा और एक एनिमल किंगडम होगा. और plant kingdom will be consisting of all the organisms apart from what he consisted in, or what he said that the animals will be consisting of. तो animals में उसने बोला protozoa, non-chordates, chordates ये होंगे, और बाकी जितना ग्रुप बचा वो सब उसने बोला कि plant kingdom में होगा. मतलब algae, blue green algae, fungi, plants, protists, everything. So now we have discussed that what is the 2 kingdom classification, है ना. अब there must be a certain basis for any kind of classification, ठीक है. तो कुछ ना कुछ without basis we can't classify. We need to have some standard, right?
सो वो जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स थे, वो जो क्लासिफिकेशन का बेसिस थे, वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लीनियस ने लिए थे ये 5. क्या क्या? फर्स्ट वॉज सेल वॉल, द सेल वॉल इज प्रेजेंट और नॉट. ठीक है. देन था लोकोमोशन, दैट the particular that organism can move or not. Third था nutrition, that a particular organisms can eat or can't eat. The fourth था stimulus. As you know, stimulus can be received by both of them because both were living in basically. But stimulus यहाँ पे मतलब है कि the stimulus response or the stimulus receptivity was fast or slow. ठीक है. देन आया लास्ट में कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, जिससे हमने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का मतलब है कि वो मूव कैसे कर रहा है या उसके कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम में क्या है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप सेल वॉल देखते हो तो एनिमल्स में सेल वॉल इज एब्सेंट और प्लांट्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट. लोकोमोशन प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स में यस. न्यूट्रिशन प्लांट्स can't eat but animals can eat. Stimulus in plants it's slow as compared to animals where it's fast. Contractile system, what? Contractile system here is absent, they can't move, they are sessile, and animals remain present because they can move. So two kingdom classification was given by Carolus Linnaeus. Some basis for classification were these 5, which you have to remember in this series only, where cell wall is the most important structure and the contractile system considered to be the least important structure, character, right? So यहाँ पे अगर ये properties किसी भी organism में हो रही हैं, अगर ये properties आ रही है तो उसको plants में रख दिया, और अगर ये property आ रही है तो उसे animal में रख दिया. तो इस हिसाब से किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ इन केस ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और टू किंगडम क्लासिफिकेशन. बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे? फर्स्ट, इट कांट डिफरेंशिएट बिटवीन अ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नो डिफरेंशिएशन between. ठीक है. Second, it can't differentiate between prokaryotic and eukaryotic organisms. Third, it can't differentiate between photosynthetic and non-photosynthetic organisms. क्यों? यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों को उसने सेम किंगडम में डाल दिया. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों को सेम में डाल दिया. फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक सबको सेम में डाल दिया. तो इट कांट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 टाइप्स, और दीज 3 distinctions were not clear in this system. So this system was discarded. So after Linnaeus gave 2 kingdom classification, then 3 kingdom classification came into place, which was given by a scientist known as Ernst Haeckel, right? So Ernst Haeckel ने क्या दिया? एक नया kingdom दिया, that was Protista. So the first kingdom to came after the 2 kingdom classification or after plant and animal kingdom was Protista. So in Protista he included all unicellular organisms, especially aquatic, right? So जितने भी इससे पहले 2 kingdom classification में लीनियस ने प्लांट किंगडम में डाले थे, वो सारे शिफ्ट हो गए यूनिसेल्युलर फॉर्म्स इन प्रोटिस्टा, लाइक एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स, राइट, एंड बैक्टीरिया. और प्लांट्स में क्या बचा? हायर प्लांट्स. और एनिमल्स में पहले प्रोटोजोआ यहाँ था, बट प्रोटोजोआ को यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, और एनिमल्स में अब क्या बचा? सिर्फ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, राइट. तो आफ्टर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या आएगा? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बाय कोपलैंड. ठीक है.
तो कोपलैंड ने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पर ऑलरेडी प्लांट और एनिमल तो थे ही, बट उसने नया क्या किया, इस प्लांट का नाम उसने दे दिया मेटाफाइटा, जिसमें कि सिर्फ मल्टी सेल्यूलर हायर प्लांट्स थे, और एनिमल का नाम दे दिया मेटाजोआ, जिसमें कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स थे। ऊपर से प्रोटिस्टा तो था ही पहले से बाय 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सारे यूनिसेल्युलर एक्वेटिक फॉर्म्स थे। तो नया क्या दिया इसने, नया दिया इसने मोनेरा किंगडम। सो दिस किंगडम वाज गिवन बाय कोपलैंड, जिसमें उसने बोला कि जितने भी प्रोकैरियोटिक फॉर्म्स हैं दैट शुड बी इन अंडर किंगडम मोनेरा। सो ऑल प्रोकैरियोट्स, पहले वाले में भी देखा था प्रोटिस्टा के अंडर में क्या क्या थे, बैक्टीरिया भी थे, स्लाइम मोल्ड्स भी थे, फंजाई भी थे, एल्गी भी थे। तो इन्होंने क्या बोला कि मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स लाओ। और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। तो फिर बैक्टीरिया प्रोटिस्टा से हटके आ गए अंडर किंगडम मोनेरा में। सो हु गेव किंगडम मोनेरा, कोपलैंड, ठीक है। तो आफ्टर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by a scientist called R.H. Whittaker, also known as Whittaker system of classification. He gave this in the year of 1969, ठीक है। तो R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उसने एक 5th किंगडम कौन से इंट्रोड्यूस किया, फंजिया, ठीक है। तो ये फंजिया में उसने क्या इंक्लूड किया, उसने बोला जितने भी नॉन फोटोसिंथेटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब अंडर फंजिया आएंगे, ठीक है। तो जो हम इसको पहले प्रोटिस्टा के अंडर में डाल रहे थे वो सारे के सारे अंडर अ न्यू किंगडम आ गए, विच इंक्लूडेड अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के 3 ड्रॉबैक्स पड़े थे। फर्स्ट, it was not able to distinguish between unicellular and multicellular। तो सबसे पहले 3 किंगडम ने क्लासिफिकेशन में अनस्टेकल ने वो सॉल्व कर दी, एक प्रोटिस्टा अलग कर दिया यूनिसेल्युलर का, है ना। सेकेंड ड्रॉबैक था इट वाज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वो कोपलैंड ने मोनेरा लाकर अलग कर दिया कि प्रोकैरियोट्स अलग हो गए, यूकैरियोट्स अलग हो गए। थर्ड था कि it was not able to distinguish between photosynthetic and non-photosynthetic organisms, और वो किससे कर दी, R.H. Whittaker ने डिस्कार्ड कर दी, और उसने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग रखा जाएगा विद द फोटोसिंथेटिक वंस। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, और ये किंगडम जो था दिस वाज द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। आज भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं यूजुअली, सो इट वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब व्हाट वर द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, तो आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक तो 2 किंगडम का पढ़ना है और दूसरा 5 किंगडम का याद रखना है, ठीक है। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने पढ़े थे, वहां पे 5 पॉइंट्स, यहाँ पे भी 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, और इसी प्रेफरेंस में याद रखते हैं, बिकॉज नीट या किसी भी मेडिकल एंट्रेंसेस में आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट सूटेबल वन, या क्या आ जाएगा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको तो 5 पता है, अब आप क्या लिखोगे, अकड़ बकड़ करके तो नहीं आंसर दोगे ना। तो इसीलिए उसमें हमें याद रखना होता है ऑर्डर। अगर इस ऑर्डर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप गिवन है तो आपको हमेशा यही दोनों में से कोई एक चूज करना है, मतलब सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस इज फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इफ इट इज नॉट गिवन देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको याद रखना है, इसी ऑर्डर में। हाउ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफिक है या भाई हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि उसकी ये हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं फाइलोजेनेटिक्स, कि जब आप उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी करते हो तो वो हिस्ट्री फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या रिलेशंस आए हैं, अकॉर्डिंग टू एंसेस्ट्री क्या डेटा कलेक्ट हुआ है, वो आएगा किसमें, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है
या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो आ गया थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देन सेल स्ट्रक्चर में आपका आ गया कि वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। डिफरेंस होता है ना प्रोकैरियोटिक इन यूकैरियोटिक सेल में, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में का मतलब क्या है, एसेक्सुअल मोड है या फिर सेक्सुअल मोड है। तो ये 5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आते हैं फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखोगे, R.H. वाइटेकर ने इनिशियली जब ये क्लासिफाई किया था तो क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, क्या क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, इन दोनों को प्लांट किंगडम में रख दिया था, ठीक है। बट इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट किंगडम टू प्रोटिस्टा. So according to modern taxonomy, these two are placed under kingdom Protista, but Whitaker placed in it plant kingdom. तो ये याद रखना है, आ सकता है नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. So the last kingdom of classification or the last classification type, which was 6 kingdom classification, was given by a scientist known as Carl Woese. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये 5 किंगडम रहने दिए, बट जो 5th किंगडम था मोनेरा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टू अ डिफरेंट किंगडम्स. फर्स्ट आर्के बैक्टीरिया एंड सेकेंड किंगडम वाज यू बैक्टीरिया. और इसका बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन क्या था, बेसिस वाज द सेल स्ट्रक्चर. यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल स्ट्रक्चर था वो मेड अप ऑफ था पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है. बट जो आर्किया बैक्टीरिया था उसका वॉल लेयर वाज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, व्हिच मींस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. एंड ड्यू टू द presence of this special chemical in their cell walls or cell structure, they were most resistant ones. They can survive even in extreme conditions. So the reason is कि उनके wall में एक special chemical है, that is lipopolysaccharides, जो कि उन्हें क्या एक property देता है, एक part देता है to resist the unfavorable conditions and to survive even in the unfavorable conditions. तो हमने कितने सारे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किए. 2 किंगडम वाज गिवन बाय लीनियस, उसने क्या किया, प्लांट और एनिमल. 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, उसने क्या किया, एक नया किंगडम लाया, वो था प्रोटिस्टा, जिसमें उन्होंने सारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अलग किए, मोस्टली एक्वेटिक. फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय कोपलैंड. एंड कोपलैंड ने क्या बोला कि एक नया किंगडम है, दैट इज योर मोनेरा, जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स आएंगे. और लास्ट में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो दिया R.H. वाइटेकर ने इन 1969. और उसने एक नया किंगडम लाया विच वाज फंजिया और फंजाई, जहां पर उसने सारे के सारे नॉन फोटोसिंथेटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया. एंड एट लास्ट 6th किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूस, जिसने बोला कि मोनेरा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2. The Archaebacteria, whose cell wall is made up of lipopolysaccharides, and Eubacteria, whose cell wall was made up of peptidoglycan. So this was all for all the kingdom classification. If you have any doubts, please do comment and tell me your doubts. Right? So that's all for today. Like a bird on a tree, I'm just sitting here